आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोशन में हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। लीनियर मोमेंटम की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हर मूव करने वाली चीज के पास लीनियर मोमेंटम होता है। तो एंगुलर मोमेंटम हम ये बोलेंगे हर रोटेट करने वाली चीज के पास एंगुलर मोमेंटम होता है। मोमेंटम जिस तक जो प्रॉपर्टीज रखता है वही प्रॉपर्टी एंगुलर मोमेंटम भी रखता है। मोमेंटम की सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करते हैं वो है दैट मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम वो क्वांटिटी है जो किसी घूमने वाले सिस्टम में कंजर्व होती है। So angular momentum is a quantity which is conserved in a rotating body. In rotating system of particles, angular momentum is conserved. Okay, how do we calculate angular momentum? When a particle, एक particle के लिए पहले लेते हैं, a particle is making circular motion. A particle has mass m, it is making a circular motion with radius r. At any instant, it has velocity, that is, speed is v. If v is the speed, m is the mass, then how much is its linear momentum? Linear momentum p is equal to mv. This is which momentum? Linear momentum. Then if we multiply with r, that is r cross p, that gives us angular momentum. R cross p is angular momentum. So if we multiply this with r, we should also multiply this with r. एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए हमने सिंबल बनाया L. सो L इज इक्वल टू R क्रॉस P. ओके, P is equal to mv, so this we can write as R into mv. Cross product gives us Rp sin theta, that is R m v sin theta. What should be theta in this? Angle between R and P. And P is mv, where m is a scalar quantity. Then which quantity has the direction? V. So R and V has certain angle between that, and that angle is theta. In this particular case, how much is that angle? 90. And how much is sine 90? 1. So we can say for right angle, L is equal to mvr. So formula for angular momentum is mvr. Okay. What is nature of angular momentum? The answer is nature of angular momentum is that it is a vector quantity.
do we get this vector quantity? This is by vector product of two vectors. When there is a vector product of two vectors, we get a vector quantity. This. And this quantity is MVR sin theta. If theta is equal to 90, then this is equal to MVR. This is angular momentum. Okay. Now this angular momentum, how it is related with the other quantities of rotational motion. This V is linear motion. R is a line. Now, what is its relation with angular quantities? Angular quantity means moment of inertia. Angular quantity means torque. उनके साथ इसका क्या रिलेशन है? देखिए उसको निकालते हैं. L is equal to R into mv. V is equal to R omega. So this we can write as R omega. So this is equal to mr square omega. mr square किसका फॉर्मूला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया I. So this is equal to I omega. So angular momentum is equal to moment of inertia multiplied by angular velocity. एंगुलर मोमेंटम इनटू एंगुलर वेलोसिटी. अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंपेयर करके देखिए. इनर्शिया, इनर्शिया मतलब क्या होता है? मास इनटू लीनियर वेलोसिटी. दोनों को कंपेयर करके देखिए, बिल्कुल एक जैसा. लीनियर मोशन में इनर्शिया किससे नापते हैं? मास. इनर्शिया इनटू लीनियर वेलोसिटी बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम. और इनर्शिया की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर दिया और लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी कर दी, तो ये क्या बन गया? एंगुलर मोमेंटम. बस. तो दोनों की प्रॉपर्टी एक ही जैसी है. क्या प्रॉपर्टी होती है? फॉर द सिस्टम इट इज कंजर्व. ओके, ये इसका रिलेशन हो गया. तो आपको अब L के एंगुलर मोमेंटम के दो फॉर्मूलाज याद रखने हैं. पहला फॉर्मूला है L इज इक्वल टू mv इंटू आर. दूसरा फॉर्मूला I इंटू ओमेगा. इसमें हम लोग और भी चेंजेस कर सकते हैं. इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं that L इज इक्वल टू I. I को क्या लिख सकते हैं? mr स्क्वायर. सो L इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू ओमेगा. इस फॉर्मूले की भी हमको बहुत जरूरत पड़ती है. इसको भी याद रखिए. कभी हम इसको यूज करेंगे, कभी इसको यूज करेंगे, कभी इसको यूज करेंगे. इसमें से कोई भी फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. और R क्रॉस V वो तो यूज कर ही सकते हैं. ये वाला फॉर्मूला R क्रॉस P, ये इसको कभी भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये इसके फॉर्मूलाज हो गए. उसके बाद इसका यूनिट बताइए. फॉर्मूला देख के क्या समझ में आता है? क्या यूनिट होना चाहिए? MVR से बना लो. हाँ, ठीक आ गया. kg मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर और आ गया. तो ये क्या हो जाएगा? kg मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसका यूनिट हो गया। चूंकि इसके हमको एफ वाला कोई फॉर्मूला इसके साथ नहीं मिला हुआ है, अदरवाइज हम न्यूटन भी यूज कर लेते। जैसे टॉर्क का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर, क्योंकि उसमें हम एफ यूज करते हैं। ओके, ये हुआ केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डायमेंशंस बोलिए। राइट, डायमेंशंस m/2t -2, ये डायमेंशंस हो गई और ये यूनिट हो गया t-1 पर सेकेंड, t-1। ओके, ये हो गया इसका यूनिट्स, डायमेंशंस। अब हम लेते हैं इसकी कैलकुलेशंस। किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह से टॉर्क को हमने अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया था, कंपोनेंट बना के, उस तरह से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या चीज का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, R और V, इनका मल्टीप्लिकेशन है। तो ये मल्टीप्लिकेशन दो तरह से हो सकता है और उन दोनों मेथड्स को देखिए किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी का डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, तो हमने कोई भी डायरेक्शन लिया है। अगर हम ऐसा डायरेक्शन लें तो आप बोलेंगे कि 90 डिग्री क्यों लिया है। ऐसा लेते तो आप बोलते वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसा क्यों लिया है। इसलिए हमने कैसा लिया, कोई भी डायरेक्शन, दिस इज एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो फिर से एक बार, पहले मेथड में हमने क्या किया था, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनाए थे। एक का नाम क्या था, वेलोसिटी रेडियल, ये किसकी डायरेक्शन में है, रेडियस की डायरेक्शन में है, रेडियस ऑफ रोटेशन, पोजीशन वेक्टर। दूसरा कंपोनेंट बी का कौन सा लिया था, जो इसके टेंजेंशियल है, इस कंपोनेंट से 90 डिग्री बनाते हुए। और एंगुलर मोमेंटम कौन बनाएगा, जो इसको रोटेट कराएगा। रोटेट कराने में किसका हाथ है, बी टेंजेंशियल। इसलिए एंगुलर मोमेंटम में m के साथ, मास के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल, m इंटू vt मल्टीप्लाइड बाय r। r पूरा का पूरा हमने लिया, लेकिन वेलोसिटी पूरी नहीं ली। वेलोसिटी कौन सी ली, vt। क्यों, ये इसके परपेंडिकुलर है और इसके कारण ये सर्कुलर मोशन बनाता है। इस v रेडियल के कारण सर्कुलर मोशन नहीं बनाता। इसलिए इसका फॉर्मूला mrv टेंजेंशियल और mrv टेंजेंशियल। v टेंजेंशियल की वैल्यू बताइए। वेरी गुड, अगर ये v है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और इसकी v sin थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, mrv sin थीटा, mvr sin थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड L का mvr sin थीटा। ये हमने इस तरीके से निकाला, किसको कंपोनेंट करके, v। अब इस डायग्राम में आते हैं। इसमें हमने बताया ये पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी है। इसमें हम वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं बदलते। पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और दूसरा कंपोनेंट अलोंग द वेलोसिटी। अलोंग द वेलोसिटी को कैसे लिखना है, r पैरेलल और इसको r नॉर्मल। अब अगर हमको एंगुलर बनाना है तो r और v, r को रेडियस r होना चाहिए और v उसके नॉर्मल होनी चाहिए, तब ये वाला हैंडल ऐसा घूमेगा। तो यहां पर हमको कौन से r के साथ कौन से v को मल्टीप्लाई करना है, v तो वही है, कौन से r के साथ मल्टीप्लाई करना है, r परपेंडिकुलर। तो यहां पर हमने बनाया L इज इक्वल टू m इंटू r परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय v। यहाँ पे v के कंपोनेंट नहीं किए, यहाँ पे v का कंपोनेंट लिया था, यहाँ r को नहीं तोड़ा था। तो दोनों में से कोई भी मेथड हम अडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो v को तोड़ दें चाहे r को। v के कंपोनेंट लिए, यहाँ r का कंपोनेंट लिया, ये बन गया। अब ये बताइए r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है इन दोनों के बीच,
ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हुआ थीटा। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन थीटा। इसलिए ये वाला जो आर परपेंडिकुलर है, आर परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर अपॉन आर इज इक्वल टू साइन थीटा। तो आर परपेंडिकुलर कितना हुआ आर साइन थीटा। तो ये वाली साइड कितने को रिप्रेजेंट करती है आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय वी। सो दिस इज एम वी आर साइन। तो हम ये देखते हैं, भले हम ये मेथड अडॉप्ट करें या ये मेथड अडॉप्ट करें, क्वांटिटी तो एक ही आती है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमको ये डिसाइड करने की जरूरत नहीं है कि ये वाला मेथड लें कि ये वाला मेथड लें। आपको जो कन्वीनियंट होता है अपने न्यूमेरिकल में वो वाला मेथड लीजिए। तो जो कन्वीनियंट लगेगा हम उस मेथड को लेंगे, क्योंकि रिजल्ट दोनों में एक सेम आएगा। ठीक, तो ये एम बी आर साइन थीटा ये हो गया। अच्छा हाँ जी, जो एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं ये सिस्टम। अब आप बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कि ये जो m है दिस इज सपोज टू बी वन पार्टिकल। ओके, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम उसका मास कहाँ कंसंट्रेटेड मानते हैं? सेंटर ऑफ मास पे। ये सेंटर ऑफ मास है उस बॉडी का। तो सेंटर ऑफ मास कैसा हो जाता है? पॉइंट। इट इज दैट पॉइंट where the complete system has its center of mass। ठीक है, अगर सिंगल पार्टिकल है तो भी ठीक है, और अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो ये क्या है उसका सेंटर ऑफ मास। ओके, तो ये हो गया दो तरह के कैलकुलेशन। अब तीसरा कैलकुलेशन, तीसरा कैलकुलेशन में अगर हमको मोमेंटम विच इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड रेडियस r दैट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, दोनों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए हैं, तो कैसे किया जाएगा? जैसे तीसरा देखिए, ये एक पॉइंट P है, ये ओरिजिन है O, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं x y z, ये इसके कोऑर्डिनेट, इस तरफ x, ऊपर की तरफ y और अंदर की तरफ z, ये इसके कोऑर्डिनेट है। यहां पर ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसा। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? ना तो ये x है, ना y है, ना z है। तो ये जो इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी है x की डायरेक्शन में vx, x की डायरेक्शन में। vy इसकी वेलोसिटी है j की डायरेक्शन में, y की डायरेक्शन में, और vz z एक्सिस की डायरेक्शन में k। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? v का, वेक्टर v, एंड दिस इज वेक्टर r। अगर इसके कोऑर्डिनेट x y z हैं तो वेक्टर r का इक्वेशन क्या बनेगा? x इंटू आई प्लस y इंटू जे प्लस z इंटू k। ये कौन है? r, और ये कौन है? v। ये चीजें हमको कैसे दी जाती हैं? जैसे 2i प्लस 3j प्लस 5k, ये वाला दिया गया 1i माइनस 2j प्लस 3k। ये जो सामने नंबर रहते हैं वो x y z ऐसे रहते हैं। अब हमको बोला गया कि ये वेलोसिटी है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है और इसका मास m है। दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें ijk नहीं होगा। अब हमको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू r क्रॉस p। r क्रॉस p, दिस इज r, p को हम लिख सकते हैं m v। m इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको लिखा m, और ये हो गया r क्रॉस v। ये m r क्रॉस v। अब
ये वाले v की वैल्यू और ये रही r की वैल्यू। तो बताइए इसके मैट्रिक्स में क्या लिखना? पहले i j k, उसके बाद यस पहले r के तीनों क्वांटिटीज कितनी हो जाएंगी? r की क्वांटिटीज x y z, x y z। उसके बाद v के तीनों फैक्टर्स vx vy एंड vz, vx vy एंड vz। ये दिस इज टू बी मल्टीप्लाइड बाय m। ये हमने किसके लिए लिखा? r क्रॉस v, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है? m। इसको ऐसा लिखिए, चाहे तो आप बीच में मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। दिस गिव्स द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मेथड कब यूज करना है? जब हमको v और r कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिए गए, तब ये वाला मेथड लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम निकालने के ये हमने 3 मेथड लिए। अब इसके बाद लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mv क्या होता है? p r इंटू p। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया dl बाई dt। दिस इज इक्वल टू r इंटू dp बाई dt। Now what is dp by dt? Rate of change of momentum क्या होता है? Force. So this is F. Now what is r cross f? R cross f is torque. इसको हम क्या लिख सकते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। Rate of change of angular momentum is torque. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? फोर्स। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। ठीक, तो फोर्स का काम वही है जो टॉर्क का है, टॉर्क का वही काम है जो फोर्स का है। मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक एक जैसी है और सारे रिलेशन एक जैसे। तो एंगुलर मोमेंटम d by dt L इज इक्वल टू टॉर्क। इसके पहले हम लोग निकाल चुके हैं एंगुलर मोमेंटम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या रिलेशन है? I इंटू ओमेगा। ये पहले कर चुके हैं, शुरू में किया था। सो L का I के साथ रिलेशन L इज इक्वल टू I ओमेगा। L का टॉर्क के साथ रिलेशन d by dt ऑफ L इज इक्वल टू टॉर्क। ये तीनों के आपस में रिलेशन हो गए। टॉर्क और I का आपस में क्या रिलेशन है? टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। ये टॉर्क और I का रिलेशन, ये L और I का रिलेशन, ये टॉर्क और L का रिलेशन। ये 3 फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए। ठीक है, तीनों के आपस के रिलेशन ये आपको याद रखने हैं। इसी तरह से तीनों का लीनियर क्वांटिटी से रिलेशन भी याद रखना है। लीनियर क्वांटिटी से क्या रिलेशन है? I, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम mr square r into f and this is r into p।
ये लीनियर के साथ रिलेशन और ये आपस में एंगुलर क्वांटिटीज के साथ रिलेशन। ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए, तभी हम इसके न्यूमेरिकल आगे बना सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स इफेक्ट्स। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, इसका क्या मतलब है? एंगुलर मोमेंटम में कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक फॉर्मूला है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू r इंटू v। ओके, इसमें दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है? I इंटू ओमेगा। I को हम क्या लिखते हैं? mr स्क्वायर। तो तीसरा फॉर्मूला क्या बना? mr स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूले को थोड़ा देखिए, व्हाट इज ओमेगा इन दिस? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मींस एक सेकंड में कितना राउंड लगाएगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। एक सेकंड में कितना एंगल बनाएगा। व्हाट इज m? मास। व्हाट इज r? रेडियस। अच्छा, अब एक बॉडी को एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन का लॉ, पहले इस लॉ को लिख लेते हैं फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो लॉ को नोट करिए, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। If no external torque is applied, the angular momentum of a system is conserved. If no external torque is applied, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है कि अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लगता है तो किसी भी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम अपने को खुद चेंज नहीं कर सकता, उसकी क्वांटिटी इतनी की इतनी ही रहेगी। जैसे एक बॉल को हमने रोटेट कर दिया, एक सिस्टम को रोटेट कर दिया, अगर उसका एंगुलर मोमेंटम 1000 है तो वो 1000 ही रहेगा, भले उसके अंदर के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएं, नजदीक हो जाएं, फास्ट घूमे, स्लो घूमे, कुछ भी करें, लेकिन एंगुलर मोमेंटम उसका 1000 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ये कहां कहां एप्लीकेबल होता है, कहां कहां हम इसको देखते हैं, उसके लिए जो मेन फॉर्मूला आप याद रखेंगे वो है L इज इक्वल टू mr स्क्वायर ओमेगा। इसमें आप देखिए, अगर हमको L को कांस्टेंट रखना है, कांस्टेंट, नो एक्सटर्नल टॉर्क इज अप्लाइड, तो इसको कांस्टेंट रहना पड़ेगा। किसी बॉडी का मास नहीं बदल रहा है तो मास भी कैसा हो गया? कांस्टेंट। ओके, अब दो चीजें क्या बची? आर स्क्वायर और ओमेगा। आर क्या चीज है? रेडियस। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, कितना फास्ट कोई चीज घूमता है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अगर हमने किसी घूमती हुई चीज का रेडियस कम कर दिया, बिना बाहर टॉर्क लगाए रेडियस कम कर दिया, अब ये तो कांस्टेंट है। अगर हमने इसको कम किया तो ऑटोमेटिकली इसको ज्यादा हो जाना पड़ेगा। ज्यादा हो जाना पड़ेगा मीन्स वो ऑब्जेक्ट तेजी से घूमना शुरू कर देगा, ताकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर उतना ही आए जितना कि पहले होता था। ठीक है, इस तरह से अगर r को बदलेंगे तो ओमेगा बदल जाएगा, और अगर r को बढ़ाएंगे तो ओमेगा कम हो जाएगा, r को कम करेंगे तो ओमेगा बढ़ेगा। ये होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो ओमेगा डिपेंड्स ऑन r।
So if R increased, omega decrease. And if R is decreased, then omega will increase. इसके एग्जाम्पल, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल इसके होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम में उसकी ये वैल्यू है कि एग्जाम में वो एग्जाम्पल कोट किए जाते हैं और हमसे ये पूछा जाता है कि इसके पीछे फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना एप्लीकेबल है। हम बताएंगे कि उसके पीछे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एप्लीकेबल है। अब ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कुछ बड़े फेमस एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में भी दिए हैं और भी जगह जगह आपको मिलेंगे। उसमें एक है बैले डांसिंग। बैले डांसिंग में जो बैले डांसर होती हैं वो जब डांस स्टार्ट करती हैं तो उनको रोटेशन लेना होता है। रोटेशन लेने के लिए हमें क्या चाहिए? टॉर्क। टॉर्क के लिए क्या चाहिए? कपल ऑफ फोर्स, यानी एक फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे टॉर्क मिलेगा और उस टॉर्क के कारण घूमना शुरू होगा। वो टॉर्क कैसे लगाते हैं? दोनों पैर को यूज करके। एक पैर को बनाते हैं सेंटर और दूसरे पैर से पुश करते हैं। हम लोग सब यही करते हैं घूमने के लिए। एक पैर को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे पैर से ऐसा पुश करते हैं। अगर ऐसा पुश करेंगे और ये लाइन है, ऐसा पुश किया नॉर्मल डायरेक्शन में, तो कैसा रोटेशन आएगा? एंगुलर। हम सबको मालूम है कैसे घूमना है एक पैर से। वैसे ही जोर से टॉर्क लगाया तो क्या शुरू हो गया? रोटेशनल मोशन। अब उन्होंने वो पैर हटा लिया टॉर्क लगाने वाला। अब ये एक बॉडी है, एक सिस्टम है जो रोटेशनल मोशन कर रही है। उस रोटेशनल मोशन का कुछ ना कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। जैसे 20 डिग्री पर सेकेंड, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि उसने घूमना शुरू किया। ओके, जिस समय वो ये रोटेशन स्टार्ट करती है उस समय उसके हाथ कहां होते हैं? तो आंसर है उसके हाथ फैले हुए होते हैं। दोनों हाथ फैले हुए होने से मास यहां डिस्ट्रीब्यूट है, तो सेंटर ऑफ मास उसका, ये वाले पार्टिकल्स का दूर हो गया, तो रेडियस ऑफ रोटेशन बहुत बड़ा बन गया। रेडियस बड़ा है, उसने मोमेंट स्टार्ट किया और वो 10 डिग्री पर सेकेंड घूम सकती है। बस 10 डिग्री पर सेकेंड से घूमना शुरू कर दी। जैसे ही उसने अपना पैर हटा लिया, एक्सटर्नल टॉर्क लगना बंद हो गया। कौन सी कंडीशन आ गई? नो एक्सटर्नल टॉर्क। अब ये जब एक्सटर्नल टॉर्क बंद हो गया, जैसे ये बंद हुआ, उसने क्या किया? ये जो अपने दोनों हाथ थे इसको ऐसा समेट लिया। ये समेटने से उसका रेडियस कैसा हो गया? छोटा। अगर रेडियस कम होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जैसे ही वो हाथ ऐसा छोटा करती है, रेडियस कम होता है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो 10 डिग्री पर सेकेंड थी, अचानक 40 डिग्री पर सेकेंड होती है और वो बड़ी स्पीड से घूमना शुरू कर देती है। ये एक टेक्निक है जो बैले डांसर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद भी उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है? उसने अपना पैर वाला टॉर्क तो बंद कर दिया है, लेकिन एक पैर जो जमीन पर रखा हुआ है उसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होता है। वो फ्रिक्शन एक उल्टा टॉर्क क्रिएट करता है। वो टॉर्क लगातार लगता रहता है। जितना वो टॉर्क होता है उसके अनुसार इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती जाती है। अगर वो टॉर्क न लगे तो कंटिन्यू घूमते रहेगी, क्योंकि उसको एंगुलर मोमेंटम मेंटेन करना। ये तरीका समझ में आया? दिस इज बैले डांसर। दूसरा, हाँ जी, फ्रिक्शन कैसे टॉर्क लगा रहे हैं? आपने बताया कि जब वो एक पैर से करें तो हम फ्रिक्शन कैसे टॉर्क लगाए? पैर का ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन तो होगा। तो दूसरा, तो वो फ्रिक्शन उल्टा टॉर्क कैसे लगाएगा? हाँ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन मोशन से उल्टी होती है। अगर ये शू ऐसे घूमता है,
ये शू इधर घूम रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? उल्टे। बस ये उल्टा फ्रिक्शन और ये रेडियस, ये क्या बनाया उसने? टॉर्क। तो शू की कुछ ना कुछ तो चौड़ाई होगी, हालांकि वो पॉइंटेड शूज पहनते हैं ताकि फ्रिक्शन कम से कम, जितना कम फ्रिक्शन होगा उतनी देर तक वो रोटेट करते रहेंगे। ओके, तो ये हो गया वैलिड आंसर का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, उसमें हम लोग करते हैं डाइविंग। किसी ने डाइविंग देखी है टीवी पर? सामने तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने नहीं देखी, देखी है सामने भी? हाँ, डाइविंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। किस तरह से यूज करते हैं? डाइविंग में यहां से एक आदमी कूदेगा और नीचे पानी पे उसको गिरना है और उसको मार्क्स इस बेसिस पर मिलते हैं कि रास्ते में वो कितनी बार उड़ान बाटी खाता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने बार ज्यादा। और उसके बाद एकदम सीधा होके, सीधा मीन्स उल्टा, सिर नीचे, हाथ ऐसे करके उसको एकदम पानी में तीर जैसे घुसना। कितनी सफाई से वो ये पूरा काम करता है, उस पर जज उसको मार्क देते हैं। कूदता जब कितना अच्छा करेगा, कितने ज्यादा रोटेशन करेगा और कितना तीर बना के एकदम तीर जैसा अंदर घुसेगा, ये रोटेशन। इस रोटेशन के साथ में अच्छे डाइवर जो हैं वो ट्विस्ट भी करते हैं, यानी ऐसा भी घूमेंगे, साथ में उनकी बॉडी ऐसे भी घूमेगी, ये भी उनकी ट्रेनिंग होती है, ऐसा भी करते हैं। ओके, हम एक रोटेशन की बात करते हैं। ये रोटेशन यहां से जब वो ग्राउंड तक पहुंचेगा तो उसके पास एक फिक्स टाइम होता है, जितना इस हाइट को ट्रेवल करने के लिए टाइम लगता है। मान लीजिए ये उसको 10 मीटर मिला या 20 मीटर मिला, जितनी भी हाइट उसको मिली उतनी हाइट से उसने कूदना है। उतनी हाइट से कूदने के लिए उसके पास एक फिक्स टाइम ही होता है। मान लीजिए उसके पास 1 सेकेंड का टाइम है, 1 सेकेंड में वो पानी को टच करेगा, क्योंकि उस पर उसका कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय जी। जी की वैल्यू तो फिक्स है। वो ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता है कि ऊपर बहुत उछलेगा, ऊपर उछलेगा तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, बस उतना। उतने टाइम में अगर उसको ज्यादा चक्कर लगाने हैं तो उसकी गोल घूमने की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारी फिजिक्स की लैंग्वेज में उसका ओमेगा ज्यादा होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। 1 सेकेंड में 4 राउंड, नहीं कर पाया तो 1 सेकेंड में 3 राउंड। ये इतना वो चाहता है। उसके लिए वो क्या करता है? उसके लिए उसका मेथड रहता है कि यहाँ पर जंपिंग बोर्ड से, स्प्रिंग बोर्ड से वो जंप करेगा और जंप करते समय अपनी बॉडी को ऐसा रखेगा, छोटा सा आर्क बना के। यहां से जैसे ही वो ऐसे हवा में जंप करता है इस तरह से, तो ये क्या बना? आर्क। ये ऐसा जाएगा तो ये कौन सा मोशन हो गया? रोटेशनल मोशन स्टार्ट हो गया। जब उसके पैर स्प्रिंग बोर्ड से हट गए तो एक्सटर्नल टॉर्क खत्म हो गया। एक्सटर्नल टॉर्क जो बोर्ड उस पर लगा रहा था रिएक्शन करके, वो बंद हो गया। अब उसके पास एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, अब उसके पास क्या है? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या चीज वो कंजर्व करेगा? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mr² ओमेगा। ये उसने बना लिया, मास है उसके पास, ये उसने जब ऐसा घुमा तो ये क्या आ गया? उसका रेडियस ऑफ रोटेशन, और कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी आ जाएगी घूमने की। 3 सेकंड में 1 राउंड या जो भी है घूमने की वेलोसिटी होगी। ओके, जैसे ही वो हवा में पहुंचता है, हवा में पहुंच के वो अपनी मस्कुलर पावर यूज करता है। मसल तो उसकी बॉडी में है। मस्कुलर पावर यूज करके जो वो ऐसा करके कूदा था, वो अपने हाथ को ऐसा कर लेता है, सिर को ऐसा कर लेता है, दोनों घुटने को ऐसा कर देता है। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो इसकी शेप है, ये शेप ऐसी हो जाती है। ये अब ये वाली शेप अगर उसने कर ली
इतनी, तो अब उसका रेडियस ऑफ रोटेशन इतना हो गया, और ये रेडियस ऑफ रोटेशन उसका पहले था, ये रेडियस ऑफ रोटेशन बाद में हो गया, और एक्सटर्नल टॉर्क को उसने छोड़ दिया। तरीका समझ आया? जब वो कूदता है तो उसकी बॉडी ऐसी रहती है, और जैसे ही हवा में पहुंचता है तो अपने आप को वो मोड़ लेता है, हाथ भी अंदर कर लेता है, घुटने भी मोड़ लेता है, और पीठ को गोल कर लेता है, तो वो उसका एक छोटा सा रेडियस बन जाता है, रेडियस छोटा हो। अब अगर रेडियस उसने 2 टाइम्स छोटा कर दिया तो ओमेगा कितना बढ़ जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वो जल्दी जल्दी तेजी से घूमना शुरू कर देता है, और नीचे गिरते गिरते 1, 2 जितना भी उसका हो सकता है उतना वो उलट बाटी कर देता है। ठीक है, तो वो अपनी एंगुलर स्पीड, घूमने की स्पीड कैसे बढ़ाता है? रेडियस को छोटा कर। ये एग्जांपल है किसके? when we change the radius, omega changes. Here we are conserving the magnitude of angular momentum. एंगुलर मोमेंटम का जो भी मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल है कैट, बिल्ली। बिल्ली का एग्जांपल क्या होता है? यस, बिल्ली को हम अगर छत से, किसी भी मंजिल से खिड़की के बाहर ऐसा फेंक दें तो वो घूम फिर के जब जमीन पे गिरेगी तो चारों पैर के ही बल गिरेगी। वो इसलिए कि जब हम उसको बाहर फेंकते हैं तो उसको कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिल जाती है हमारे फेंकने के कारण। वो जो एंगुलर वेलोसिटी मिलती है वो जज कर लेती है कि गिरते हुए वो सिर के बल गिरेगी, पीठ के बल गिरेगी कि कैसे गिरेगी। उसके बाद वो अपने पैरों को मोड़ के अपने रेडियस को छोटा या बड़ा कर सकती है। अगर उसको लग रहा है कि मैं पीठ के बल गिरूंगी तो पैर को सिकोड़ के रेडियस छोटा कर लिया तो एंगुलर वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, तो फास्ट होने से जल्दी घूम जाएगी, पीठ को पार करके पैर के बल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से वो चाहे तो पैरों को, हाथ पैर को फैला के सीधा होके अपना घूमना बंद कर सकती है, एंगुलर वेलोसिटी कम कर देगी। अगर वो रेडियस बढ़ा देगी तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वो ये चेक कर लेती है कि जमीन पर उल्टे गिरने के पहले उसको फास्ट होके सीधा होना है कि स्लो होके सीधा होना है। उस तरह से वो मोड़ के अपने रेडियस को एडजस्ट करती है और पैर के बल ही नीचे गिरती है। ये एग्जाम्पल किसका है? कैट। इन तीनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि हम क्या चीज कंजर्व करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। मैग्नीट्यूड मींस क्वांटिटी। अब एक और इससे एडवांस चीज है, एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इफ एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी देन इट हैज two quantities in it, one is magnitude and other is direction. अभी तक हमने जो भी एग्जाम्पल पढ़े हैं उसमें हमने किसको कंजर्व किया? मैग्नीट्यूड, एल की क्वांटिटी को कंजर्व किया। क्या हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें डायरेक्शन भी कंजर्व होती है? द आंसर इज यस, ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो वैसे एग्जाम्पल देखिए, ऐसा सबसे कॉमन एग्जाम्पल है साइकिल। साइकिल में जब हम साइकिल चलाते हैं और उस पर बैठते हैं और आपको हम कहेंगे दोनों पैर पैडल पे रख लो, तो दोनों पैर आप पैडल पे रखोगे और साइकिल एक न एक तरफ गिर जाएगी। लेकिन अगर साइकिल चलती रहती है तो एक तरफ नहीं गिरती, फिर आप आराम से दोनों पैर पैडल पे रख के चलते रहते हैं। तो ये कैसे होता है? इसके लिए देखिए, ये सामने का व्हील है। हमने साइकिल को स्टार्ट किया, पैडल से ऐसा पुश किया और इसको चला दिया। जैसे ही इसको चलाया रोटेशनल मोशन होने लगा। रोटेशनल मोशन होगा तो इसमें एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। एंगुलर मोमेंटम आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी आएगा और उसकी डायरेक्शन भी आएगी। ओके, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आएंगे। डायरेक्शन कौन सी आएगी? तो आंसर है ये होती है डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ये डायरेक्शन। ठीक है, ये साइकिल का व्हील है,
व्हील घूमेगा, एंगुलर मोमेंटम बना, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अब हमने उस साइकिल से अपना पैर उठा लिया, पैर उठा लिया और अपना सेंटर ऑफ मास साइकिल के बीच में ले आए, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस करना। दोनों काम हो गए। ये दोनों काम करके हमने क्या किया, ये दोनों काम करके हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाना बंद कर दिया। अगर हम टेढ़े होते तो हमारे mg वेट को वो नीचे खींचता टॉपल करने के लिए, तो एक टॉर्क लगता। हम बैलेंस हो गए, वो टॉर्क जीरो हो गया। पैर को हमने ग्राउंड से हटा लिया तो हम पैर से धक्का नहीं दे सकते, वो भी एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया। अगर ये दोनों टॉर्क जीरो हो गए तो ये अपने एंगुलर मोमेंटम को मेंटेन करेगी, क्वांटिटी को भी मेंटेन करेगी और डायरेक्शन को भी मेंटेन करेगी। अब डायरेक्शन को कैसे मेंटेन करेगी, साइकिल को ऐसे चलना है। अगर साइकिल ऐसे चलेगी, ये एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है। अगर ऐसा साइकिल गिरने लगी तो ये डायरेक्शन ऐसी टेढ़ी हुई। अगर ये डायरेक्शन टेढ़ी हुई तो ये कंजर्व हुई कि नहीं हुई? पहले ऐसी थी और अब ऐसे हो गई, तो इसका क्या मतलब है, कंजर्व नहीं हुई। लेकिन हमारा रूल क्या कहता है कि कंजर्व होना है। अगर उसको कंजर्व रहना है तो इसको कैसा रहना पड़ेगा, ऐसे। अगर इसको ऐसा रहना पड़ेगा तो व्हील को कैसा रहना पड़ेगा, ऐसे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है। इसलिए जितनी देर तक साइकिल चलती रहेगी, ये वाला एक्सल उसका ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा फिजिक्स का नियम क्या कहता है, एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व एंड इट इज कंजर्व इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन ऐसी या ऐसी नहीं हो सकती, ऐसी ही रहेगी। ऐसे हमने साइकिल स्टार्ट किया वर्टिकल में, तो इसको कैसा रहना पड़ेगा, वर्टिकल ही रहना पड़ेगा, जब तक इसमें एंगुलर मोमेंटम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम कब तक रहेगा, जब तक उसमें ओमेगा रहेगा। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। जब तक इसमें एंगुलर वेलोसिटी है तब तक ये ऐसा चलता रहेगा, ये डायरेक्शन रहेगी। लेकिन अगर इसको साइकिल को चलाना हमने बंद कर दिया तो ओमेगा बंद, एंगुलर मोमेंटम खत्म। अगर एंगुलर मोमेंटम खत्म तो उसका कंजर्वेशन भी खत्म, फिर साइकिल ऐसे गिर जाएगी। इसीलिए खड़ी हुई साइकिल पे हम बैलेंस नहीं कर सकते। चलती हुई साइकिल पर चूंकि ये अपने आप को मेंटेन करेगा, हम भी इस पे बैठे रहते हैं और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। समझ में आया? तो इसमें ये आता है क्वेश्चन कि when we balance the cycle when it is running, the cycle at rest is not balanced, but the cycle when it is running can be balanced. Which phenomena is responsible for it? तो आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आया? ये इसका होता है। और एग्जैक्टली यही एक फिनोमिना दूसरे चीज में काम करता है और वो है टॉप। लट्टू चलाते हैं हम जमीन में, टॉप चलाते हैं। उस टॉप को चलाते हैं, अगर वो नहीं चल रहा होता तो गिर जाता है, लेकिन अगर चल रहा होता है तो खड़ा रहता है, एक नोक पे भी खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि हमने एक बार रस्सी से उसको घुमाया, ऐसा घुमाया, घुमाने से उसमें एंगुलर वेलोसिटी आ गई और क्या बन गया, एंगुलर मोमेंटम भी उसमें आ गया। एमआर स्क्वायर ओमेगा एंगुलर मोमेंटम उसमें आ गया। उसके बाद हमने रस्सी हटा ली, हर चीज हटा ली, एक्सटर्नल टॉर्क लगना बंद हो गया, तो ये एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करेगा। अगर ये ऐसा घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए। अगर ये ऐसा घूमता है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बाहर, मतलब इधर कि इधर, इस तरफ। ये ऑब्जेक्ट घूम रहा है, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन बताइए। आप क्या बोल रहे हो, ऊपर की तरफ, दैट इज द राइट आंसर, ऊपर की तरफ। क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन किधर है, बोलो? नहीं, ये पार्टिकल को देखो कैसा घूम रहा है। हाँ जी, ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ये है प्लेन ऑफ रोटेशन। ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, ओके, ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, तो ये किधर आया, नीचे, ठीक है, मीन्स वर्टिकल, ऐसे घुमा देते।
अगर ऐसे घूम रहा है तो किधर है? ऊपर। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जब हम उसको घुमाते हैं टॉप को तो वो ऐसे घूमता है। ऐसे में उसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर बनी? ऊपर की तरफ। अब हमने एक्सटर्नल टॉर्क हटा दिया तो ये हमेशा किधर बनी रहेगी? ऊपर की तरफ। अब अगर ये ऐसा गिरना चाहता है तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे हो गई। ये अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है, इसको ऐसा ही रहना। इसलिए जब जब ये गिरने की कोशिश करता है सीधा हो जाता है। क्यों? इसको मेंटेन करना। इसको मेंटेन करना है एंगुलर मोमेंटम। किस किस चीज की एंगुलर मोमेंटम को? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और ये किसको मेंटेन कर रहा है? डायरेक्शन। दिस इज व्हाई द टॉप इज रोटेटिंग। तो टॉप के रोटेशन में कौन सा फिनोमिना काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। साइकिल के चलने में कौन सा काम करता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इस तरह से ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम में एक और तरह का कंजर्वेशन होता है जो अभी आप लोगों को शायद नहीं पढ़ाया जाता 11th में, एंड दैट इज ऑसिलेशन। ये आपने देखा होगा कई बार हम टॉप को चलाते हैं तो एकदम फिक्स नहीं चलता, ऐसे ऐसे चलता है, घूमता भी रहता है और घूमते घूमते ऐसे भी चलता है। ये क्या होता है? इट इज ए ऑसिलेशन। एक बार अगर हमने टॉप को ऑसिलेशन दे दिया दैट इज ऑल्सो कंजर्व। वो अपना एक रोटेशनल मोशन बनता है, उस रोटेशनल मोशन का ऑसिलेशन भी कंजर्व होता है एंड इट मूव्स लाइक दिस। ठीक है, सो एंगुलर मोमेंटम इज द क्वांटिटी विच इज कंजर्व इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। There is an object of mass m moving in a straight line with velocity v. It has certain perpendicular distance from an external point O. Then दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो नहीं पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, does it have any angular momentum? इसके पास एंगुलर मोमेंटम है या नहीं है? ओके, तो देखिए जब ये पार्टिकल यहां पर था इसके रिस्पेक्ट में ये इसकी पोजीशन थी। फिर जब ये यहां से यहां चला गया तो पोजीशन वेक्टर कहां है? ये। फिर जब यहां से यहां चला गया तो पोजीशन वेक्टर, फिर यहां चला गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या कर रहा है? एंगुलर मोशन कर रहा है। पोजीशन वेक्टर एंगुलर मोशन कर रहा है। जब हमारी साइकिल चलती है तो उसका स्कोप क्या करता है? एंगल बढ़ाता है अपना। ये देखो एंगल बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो इसका मोशन कैसा हो गया? एंगुलर मोशन। तो ये वाला पार्टिकल एंगुलर मोशन कर रहा है कि नहीं? कर रहा है। ठीक है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ओ के रिस्पेक्ट में। ओ के रिस्पेक्ट में। अगर ये पॉइंट को हम यहां ले लें तो फिर ये एंगुलर मोशन नहीं कर रहा, फिर क्या कर रहा है? लीनियर मोशन। समझ आया? सो अब हम इसको शब्दों में लिखते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्सटर्नल पॉइंट ए स्ट्रेट मूविंग ऑब्जेक्ट मेक्स एंगुलर मोशन। समझ आया? सो विद रिस्पेक्ट टू एन एक्सटर्नल पॉइंट a straight moving point makes angular motion। ये इसको याद रखिए। अच्छा, अगर ये एंगुलर मोशन करता है तो इसके पास एंगुलर मोमेंटम भी होगा। अगर इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा तो क्या वो कंजर्व होगा? तो आंसर है यस।
एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है, इस एग्जांपल में भी कंजर्व होगा, याद रखिए। उसके बाद हमको बोला जाता है कि प्रूफ करो कि इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। ये चीज आपको प्रूफ करनी है एंड इट्स वेरी इजी टू प्रूफ। किस तरह से? यहां से हमने ये ऐसा चलते जा रहा है, ये इसका एंगल बढ़ते जा रहा है। दिस इज θ1, दिस लेंथ इज r1, दिस लेंथ इज r2, दिस एंगल इज θ2, दिस लेंथ इज r3, दिस एंगल इज θ3। ओके, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv/r sin θ। ओके, when this particle is at P, what is its angular momentum? At P, angular momentum L is equal to m into v into perpendicular distance. How much is this distance? R. So this is R. Okay. At Q, L is equal to mv. अब R कितना लेना है? R1 sin θ1। यहां पर साइन क्या था? 90, that was 1। अब बताइए R1 sin θ1, ये वाला ट्रायंगल थोड़ा देखिए, ये ट्रायंगल R1 के दो कंपोनेंट। ओके, sin θ1 की वैल्यू क्या है? sin θ1 का परपेंडिकुलर कौन है? हाइपोटेनियस R1 को इधर ले आइए। R1 sin θ1 किसके बराबर होता है? R। तो ये कितना हो गया? R1 sin θ1 की वैल्यू क्या हो गई? R। सो ये कितना बना? mv/r। ठीक, उसके बाद एट R mv। अब ये डिस्टेंस कितना है? R2, एंगल θ2। सो mv/r2 sin θ2। अब इस ट्रायंगल में देखिए, ये रहा R2, ये रहा θ2। तो R2 sin θ2 किसके बराबर हुआ? R के बराबर। θ2 के सामने परपेंडिकुलर कौन है? R/r2 इज इक्वल टू sin θ2। तो R2 sin θ2 क्या हुआ? R। So again this is equal to mv/r। अब S पर आ जाइए, mv/r3 sin θ3। अब ये रहा R3 और ये रहा θ3। sin θ3 किसके बराबर है? sin θ3 इज इक्वल टू R/r3, ये वाले ट्रायंगल में। तो R3 sin θ3 इज इक्वल टू R। फिर से हमने इसको लिखा, तो ये R3 sin θ3 इज इक्वल टू R। हर समय इसका एंगुलर मोमेंटम कितना है? mvr। सो एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। तो प्रिंसिपल क्या बना? फॉर एनी स्ट्रेट मोशन, for any particle moving in a straight line, its angular momentum about an external point is conserved। ये हमने क्या किया? प्रूफ किया किस चीज को?
इसका हमने प्रूफ किया, और ये प्रूफ कभी कभी एग्जाम में आता है। प्रूफ दैट फॉर पार्टिकल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सटर्नल पॉइंट इज कंजर्व्ड। ये जितने ट्रायंगल बन रहे हैं, इन सब ट्रायंगल के बारे में एक चीज कॉमन है। क्या बता सकते हैं वो क्या चीज है? राइट, दैट इज परपेंडिकुलर हाइट। देखिए, यहां से अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन बना दूं, ये पहला ट्रायंगल, इसका बेस कितना है? 1 सेकेंड में ये पार्टिकल कितना दूर जाता है? v। 1 सेकेंड में यहां से यहां तक गया, तो ये डिस्टेंस कितना है? v। और इसकी हाइट कितनी है? r। तो एरिया कितना है? हाफ v इंटू r। दूसरे 1 सेकेंड में फिर यहां से यहां गया, कितना दूर? v। तो बेस कितना है? v। और इसकी हाइट कितनी है? ये पॉइंट की इस लाइन से हाइट r। तो एरिया कितना हुआ? हाफ वी आर। जो इसका हाफ वी आर था, इसका भी हाफ वी आर। अब ये तीसरे ट्रायंगल में आइए, यहां से यहां बेस कितना है? v 1 सेकेंड में, और इसकी हाइट कितनी है? इस पॉइंट की इस बेस से कितनी हाइट है? r। तो इसका एरिया भी कितना हुआ? हाफ वी आर। इसी तरह से ये फिर 1 सेकेंड में यहां पहुंच गया, तो इसका एरिया भी कितना है? हाफ वी आर। तो क्या हो रहा है? हर 1 सेकेंड में वो बराबर बराबर एरिया बना रहा है। ये जो बराबर बराबर एरिया बनता है, इसको हम कहते हैं एरियल वेलोसिटी। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, देन इट्स एरियल वेलोसिटी अबाउट एन एक्सटर्नल पॉइंट इज कांस्टेंट। नोट करिए, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, if a particle is moving with uniform velocity in a straight line, then with respect to an external point, its aerial velocity is constant. ओके, तो यहां पर एरियल वेलोसिटी क्या बनी? एरियल वेलोसिटी हाफ वी आर। अगर हम इसमें ये हाफ वी आर को हमने क्या प्रूव किया? कांस्टेंट। अगर इसमें m को मल्टीप्लाई करते हैं, m इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, 2m को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया? mvr इज कांस्टेंट। And what is MVR? L. So, angular momentum is constant as well as aerial velocity is constant. ये दोनों का आपस में रिलेशन होता है। ये अगले चैप्टर में हमको ग्रेविटेशन के चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब अगली क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और इससे अगला टॉपिक